Hello friends, we'll start today's webinar. All friends are welcome. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the MC and the society members. It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is members versus managing committee, bad ego, attitude, disputes, non-transparency, mismanagement, and probable solutions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Other questions will be ignored. Before we invite our speaker to explain final details, let us understand these few points. Managing committees typically do not want to conduct themselves according to law, want to be arrogant, adamant, threateners, egoistic, who think that they are honorary and doing a favor to society and its members. Majority Majority managing committees have a chronic habit of declaring कि do not pressurize us, हमको प्रेशराइज मत करो, हमारा काम तो ऑनररी है, हम ऑनररी हैं, तुम्हारे नौकर नहीं हैं, हम अपना फैमिली टाइम छोड़कर आते हैं सोसाइटी की सेवा के लिए, वी आर गिविंग फ्री सर्विस and utilizing our private time. Such above category or arrogant minded MCs are not fit for MC seats and usually are a cause of infighting, appointment of administrators या authorized officers, misappropriation of funds, सोसाइटी में जो पैसे का खाना पीना कर देते हैं, causing loss to society and its members. कई बार आपने देखा होगा कि मेनी मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स कंटिन्यू, उनका कार्यकाल टर्म खत्म हो गया है, फिर भी वो कंटिन्यू करते रहते हैं, इलेक्शन करने का नाम नहीं लेते और ये पूरा गैर कानूनी है, इलीगल है. Disputes and non-transparency, mismanagement starts from accounts, audit, recovery proceedings, membership transfers, not providing documents to members, improper or false recording of general body resolutions, managing committee resolutions,
managing committee resolutions, not conducting timely managing committee meetings. I'll request everybody to keep their microphones on mute. Not providing documents to members, improper recording of general body resolutions. ये सारे कई examples हैं. Improper recording of managing committee resolutions. Managing committee timely मीटिंग नहीं करते हैं, सारे मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स अटेंड नहीं करते हैं पर अपना एब्सेंस या सिग्नेचर मार्क कर देते हैं. मैनेजिंग कमिटी प्रॉपरली सोसाइटी के रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स को अपडेट नहीं करती है, मेंटेन नहीं करती है. मेजर कंप्लेंट्स आते हैं कि मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स आर ट्रीटिंग मेंबर्स with insulting behavior, using society resources for personal work, deliberately creating legal disputes between members against members and using society funds to fight court cases. सारे मेंबरों का नुकसान हो जाता है उससे. Harassment while keeping live-in license or bachelor tenants, making illegal rules वगैरह वगैरह. Looting CHS funds via major repairs, redevelopment procedures, deemed conveyance procedures, taking commissions from different vendors, staff. ये सारे मिसमैनेजमेंट है. ऐसे ही और कई उदाहरण भी है. There will always be 2 to 5% members, general members, who create trouble in every society, to the society and to the managing committee. टिपिकली देखा गया है कि ये जो ट्रबल क्रिएटर्स होते हैं यूजुअली पास्ट मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स होते हैं जो अभी सीट पे नहीं आने के कारण अपने व्यूज को इम्पोज करने पे लगे रहते हैं. कुछ और भी होते हैं लेकिन टिपिकली ये पुराने मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स होते हैं. देयर विल बी फ्यू मेंबर्स अपने अपने सोसाइटी में कुछ जेन्युइन मेंबर्स भी होंगे जो बहुत ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज पुराने कुछ मेंबर्स हैं या कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो लगातार परेशान करते रहते हैं और ऐसे ईमानदार मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स अल्टीमेटली वो मैनेजिंग कमेटी को रिजाइन करके छोड़ देते हैं. इन सारे विषय पे आगे जानने के लिए वी विल इनवाइट today's speaker, Mr. Muhammad Afzal, who will share his knowledge and experiences on today's topic. Over to you, Mr. Muhammad Afzal. Please take over and proceed. Thank you. Thank you, Hemanji. Am I audible? Yes, please go ahead. Can you hear? Yes. Okay. देखिए, मेरा एक्सपीरियंस करीबन 4 डिकेड का रहा है, अराउंड 43 इयर्स. और मैं साइकोलॉजिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे भी मेरा तालमेल रहा है. आई हैव ऑल्सो बीन इन द मैनेजिंग कमिटी एंड एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑल्सो. तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही प्रैक्टिकल है और मैं उसके तहत मैं आपसे बात करूंगा. मैं आई हैव प्रिपेयर्ड पीपीटी जो इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी में उसका अनुवाद करने की कोशिश करूंगा. अगर कुछ कमी रह जाए तो अब मुझे आप क्षमा करें. देखिए कैसा होता है कि चाहे वो मैनेजिंग कमिटी हो या ऑर्डिनरी मेंबर हो, देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक लॉ, बाय लॉ, एक्ट्स एंड रूल्स. और इसी के वजह से
जो सोसाइटी का अफेयर्स है उसको सही ढंग से चलाने के लिए बहुत तरीके से ये हैम्पर होता है। हम फ्लैट ओनर्स जो है, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, हमारा कोई दायित्व होता है, और मैं समझता हूं कि वी कैन नॉट बी मे कंज्यूमर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। हमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, हमें वी हैव टू बी को क्रिएटर्स। तो हमें मतलब यानी जब तक हम सही तरीके से उसको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी सब्जेक्ट को लेके, तो उसका समाधान नहीं होगा। एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कलेक्टिवली अगर हम देखें तो यूनिटी इज अ वेरी पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन एज फ्लैट ओनर्स। मगर क्या होता है कि हम अपने राइट्स को सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और अगर हम करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत हमें वो राइट्स को एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बायलॉज आप देखेंगे, एक्ट देखेंगे, और जितने भी सारे लॉज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, मगर हम क्या करते हैं कि हम उसको फॉलो करने में हम सक्षम नहीं है, और हम सही तरीके से और सही वक्त पे उसको यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ग्रिपिंग करते हैं। और आज आप जानते हो कि हर सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत जहनी लोग भी हैं, जिन्होंने एमबीए भी किया हुआ है, जो वेल एजुकेटेड है, और मतलब इन्हें कानून कायदे भी जानते हैं। मगर क्या हो जाता है कि ये सब लोग जो है ये प्रॉब्लम को फोकस नहीं करते हैं। तो हमें प्रॉब्लम में फोकस करना है, और उसको एमिकेबली कैसे रिजॉल्व करना है, ये हमारे कंधे पे बात आती है। अमूमन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जिन लोगों को कोई कानून के बारे में जानकारी नहीं है, वो कुछ भी उटपटांग कुछ भी बोलते हैं, आपको चढ़ाते हैं, मगर ये सही नहीं है। मैनेजिंग कमेटी के हम थॉट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो ये मेरा मानना है कि अक्सर लोग कहते हैं, मैनेजिंग कमेटी कहती है कि भाई हम ये ऑनररी कर रहे हैं और हम आपके नौकर नहीं हैं। मगर ये मेरा जाती मानना है कि जब कोई नॉमिनेशन फाइल करता है, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करता है, लोगों को रिक्वेस्ट करता है, सॉलिसिट करता है मेंबर्स को, ओनर्स को, कि आप हमारे लिए वोट करें, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर आप जीत के आते हैं, तो ये आपका चॉइस था कि आप चाहते थे कि लोगों की सेवा करें। तो अगर आप कहते हैं कि आप ऑनररी है, तो मैं इसको मानता नहीं हूं पर्सनली। ऑल्दो द फैक्ट रिमेन्स कि भाई दे आर नॉट बीइंग पेड फॉर इट, बट क्योंकि आपने ऑप्ट किया कि भाई आपको इलेक्शन लड़ना है, तो ये आपने अपने तरफ से ये मान लिया कि आपको लोगों की सेवा करना है। अब अगर मेजॉरिटी मैनेजिंग कमेटी की अगर हम बात करते हैं, तो उनको ना लॉस के बारे में मालूम है, ना एक्ट्स के बारे में मालूम है, ना रूल्स के बारे में मालूम है। बेसिक उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि भाई उनको लगता है कि भाई हम मैनेजिंग कमेटी में आएंगे तो बहुत फकर की बात है, जो सोसाइटी के वॉचमैन है, या सोसाइटी के प्लम्बर है, या सोसाइटी में जो भी वेंडर्स हैं, वो हमें सल्यूट करेंगे, हमारा मतलब हमारा एक रुतबा बढ़ता है। ये एक उनके साइकोलॉजी रहती है कि भाई हमें एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है, हमको वो इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग इज बाय इटसेल्फ करप्ट। आज अब एग्जांपल देते हैं, अगर हम और आपको अगर लाल बत्ती की गाड़ी दी जाए, तो हमारा भी चाल बदल जाएगा। तो ये एक स्वाभाविक चीज है। नॉर्मल जो टेंडेंसी है कि उनका कहना ये समझना है कि भाई हम सब कुछ जानकारी रखते हैं और आपको कुछ नहीं मालूम है, हम जो कहेंगे आपको वो मानना पड़ेगा। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होता है और इलेक्शन ऑफिसर जब पहली मीटिंग बुलाता है, तो इसमें वो पहली मीटिंग के अंदर
जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो जमा होते हैं, उसमें ऑफिस बेरर्स को चुना जाता है, जैसे कि चेयरमैन है, सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है। इस पे दो तरीके से होता है, एक तो सहमति से होता है, और अगर सहमति नहीं हो सबकी तो ये वोटिंग के जरिए होता है। तो जब वोटिंग के जरिए होता है तो वी कैन से कि इट इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑफिस बेरर्स एंड मैनेजिंग कमिटी। तो ये चीज हमें अपने दिमाग में रखना है। जब ये ओनर्स जो है वो वोट करते हैं तो यूजुअली मैनेजिंग कमिटी, ये उनके दिमाग में रहता है कि भाई हम सोसाइटी के बॉस हैं और कोई हमारे सामने कोई महत्व नहीं रखता है, हम जो कहेंगे वो ही चलना चाहिए। और द फैक्ट रिमेन्स दैट दे आर ओनली द ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी टू ओवरसी द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी जो डे टू डे जो सोसाइटी का वर्क होता है, सिर्फ उसको अंजाम देने के लिए ये मैनेजिंग कमेटी स्थापित की जाती है। ये किसी तरीके से भी पूरे सोसाइटी के बॉस नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन होने के बाद उनको ये ईगो इशू बहुत आ जाता है। ये ईगो इशू के भाई हम ओह आई एम सॉरी, ओह एक मिनट, ओह ओह जस्ट वन, आई एम सॉरी। ओहो, ओके, आई एम सॉरी जी, जस्ट अ मोमेंट। ओहो, हाँ जी, आई एम वेरी सॉरी। when the owners of the flat and मैनेजिंग कमेटी समझती है कि भाई हम सब करता धरता है, और बाकी के लोग मतलब इन्हें और मेंबर समझते हैं कि भाई द मैनेजिंग कमेटी आर ऑल आवर सर्वेंट्स, जो सही तरीके से सही नहीं है। फ्लैट ओनर्स, ये पाया गया है कि दे स्लीप ओवर लॉट ऑफ इश्यूज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में नेम चेंज होने की बात है, प्रॉपर्टी टैक्स बिल चेंज होने की नेम चेंज होने की बात है, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो पड़े हुए रहते हैं तैयार होके, वो कलेक्ट करते नहीं है और सालों साल नहीं कलेक्ट करते हैं, और जब उनको जरूरत पड़ता है वो मैनेजिंग कमेटी को प्रेशराइज करते हैं कि भाई आप हमें जल्द से जल्द दीजिए। तो ये हमें मेंबर्स लोग को समझने की जरूरत है कि मैनेजिंग कमेटी है, उनकी पर्सनल लाइफ भी है, हमें उनको वक्त देना चाहिए, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सारे आपके मामले सुलझ जाएंगे। इन टूडेज टाइम मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज आर हैविंग व्हाट्सएप ग्रुप। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप ग्रुप में इररेलेवेंट चीजें डिस्कस हुई जाती है, लोग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं, लोग अनाप शनाप जिनको कोई जानकारी नहीं होती लॉ के बारे में, वो कुछ भी कहते हैं, मगर जो किसी का इशू है उस पर वो फोकस नहीं करते हैं। Members have their own ego which clashes with the ego of the managing committee, और इसके वजह से we see clash of the titans। डिस्प्यूट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, कॉमन डिस्प्यूट्स, जैसे कि इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेके आर्बिटरी चार्जेस होती है, जैसा कि मैनेजिंग कमेटी शिफ्टिंग चार्जेस लगाते हैं जो टोटली अनिवार्य है और लीगली नॉट परमिसेबल है। पार्किंग के इश्यूज होते हैं, वाटर शॉर्टेज के इश्यूज होते हैं, डर्टी वाटर फ्लोइंग ड्यू टू द एसटीपी प्लांट फेलियर है, लीकेज है, नॉर्मल है कि लीकेज होता है, कभी टेरेस से होता है, कभी आउटसाइड वॉल से होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर वाले फ्लैट के जो वॉशरूम है वहां से भी लीकेज होती है। उसके अलावा नेबर्स लोग हैं जो भाई 10 बजे का जो टाइम लिमिट सेट किया गया है
वहां पे वो लाउड म्यूजिक करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, और सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज जैसे कि वेट एंड ड्राई वेस्ट, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो कॉमन डिस्प्यूट में आते हैं. The flat owners need to understand that each of the above has a protocol to follow with the society managing committee. अब क्या हो जाता है कि कोई भी इश्यूज को लेके, अभी आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर के फ्लैट वाले के बाथरूम से लीकेज आपके यहाँ आ रहा है, तो आप दुनिया भर का आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, अनाप शनाप इररिलेवेंट चीजें डिस्कस करते हैं, मगर और आप ये भी करते हैं कि भाई सोसाइटी के ऑफिस में जाके वहां पे धांधली करते हैं कि भाई ये ऊपर वाला फ्लैट है और वहां से लीकेज हो रहा है, आप ठीक करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले फ्लैट वाले की तरफ से लीकेज होता है तो दिस इज एन इंटरनल मैटर बिटवीन बोथ द फ्लैट ओनर्स, और ये सोसाइटी के परव्यू में नहीं आता है. तो या तो आप ऊपर वाले फ्लैट ओनर से मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, और अगर वो रिक्वेस्ट पे वो नहीं मानते हैं तो आप बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट पे आप ये कंप्लेन डाल सकते हैं. कंप्लेन डालने के बाद वो स्पेसिफिक नोटिस इशू करेंगे इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी फिर या तो ऊपर वाले जो फ्लैट ओनर है उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना बाथरूम का टाइल्स बनाइए या जो भी अपना लीकेज हो रहा है उसको रेक्टिफाई करिए, अदरवाइज सोसाइटी विल गेट इट डन एंड whatever the charges are will be added to the maintenance. तो क्या हो जाता है कि अगर लीकेज का प्रॉब्लम है जो सोसाइटी के तरफ है, जैसा कि टेरेस से लीकेज है या आउटसाइड वॉल से लीकेज है, वो सोसाइटी के अंडर डायरेक्टली आता है. वो ग्रीवेंस को लेके आप सोसाइटी से लड़िए, आप सोसाइटी से रिक्वेस्ट करिए. और अगर इंटरनल दो मेंबर के बीच में होता है तो आपको फ्लैट ओनर से डिस्कस करना है. अगर उससे आपका समाधान नहीं होता है तो फिर आप जाके आप बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में आप इस चीज को एक्शन ले सकते हैं. पार्किंग का भी यही इशू है. पार्किंग का ये इशू है कि भाई कोई लोग गलत तरीके से पार्क करते हैं, और कोई लोग मतलब यानी जिनकी जगह नहीं है उनके यहाँ जाके आप उनके जगह में पार्क कर लेते हैं. तो ये सारे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप या तो सोसाइटी को बोल सकते हैं या फेडरेशन को बोल सकते हैं. अगर वो प्यार मोहब्बत से इसका समाधान नहीं होता है तो पार्किंग इशू को लेके आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में आपको केस फाइल करना पड़ेगा. क्या हो जाता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने देखा है, ये पर्सनल अनुभव है कि व्हाट्सएप ग्रुप में 6-6 महीने हो जाते हैं, एक ही चीज को वो रिपीट करते हैं, इररिलेवेंट चीजों को डिस्कस करते हैं, मगर जो प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली इशू नहीं करते हैं. उसको मतलब यानी आपको या तो सोसाइटी को बोलना है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली इनिशिएटिव लेके या तो कोऑपरेटिव कोर्ट में वहां पे आप केस दायर कर सकते हैं और उसका समाधान हो सकता है. तो वैसे बहुत सारे इश्यूज हैं, लीकेज का है, पार्किंग का है, ये जो शिफ्टिंग चार्जेस है, शिफ्टिंग चार्जेस भी जो है वो मतलब यानी सोसाइटी नहीं लगा सकती है, बिकॉज एज अ कंज्यूमर आप मेंटेनेंस भरते हैं, और आप मेंटेनेंस भरते हैं तो जो शिफ्टिंग चार्जेस है वो आपका टेनेंट भी अगर है तो वो भी यूज कर सकता है, लिफ्ट भी यूज कर सकता है, और ऑफिशियली दे कैन नॉट चार्ज यू द शिफ्टिंग चार्जेस. बहुत सारे सोसाइटीज में वो 1000 रुपया चार्ज करते हैं, विच इज अनकॉल्ड फॉर एंड इट नीड्स टू बी कॉन्टेस्टेड. तो अप्रोप्रिएट फोरम में आपको अपने ग्रीवेंसेस को ले जाना है. अगर सोसाइटी रिलेटेड है तो मैनेजिंग कमिटी को लिख के देना है. अगर मैनेजिंग कमिटी से नहीं होता है और जो चीज उनके परव्यू में नहीं आता है तो यू कैन अप्रोच द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, द कोऑपरेटिव कोर्ट. अगर आपको लगता है कि देयर हैज बीन मिसमैनेजमेंट इन द अकाउंट्स और आपको ये सिद्ध हो जाता है, आपके पास एविडेंसेस होते हैं, तो उसके बिना पे आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी आप जा सकते हैं एंड यू कैन फाइल अ प्राइवेट कंप्लेन. अगर लीकेज का प्रॉब्लम है, लीकेज का प्रॉब्लम अगर मैनेजिंग कमिटी सॉल्व नहीं करती है जो उनके जिम्मे है, तो आप कंज्यूमर कमीशन में भी आप फाइल कर सकते हैं केस.
ऑन द अदर हैंड द मैनेजिंग कमेटी, जैसा मैंने आपको बताया कि 99% उनको ना एक्ट के बारे में मालूम है, द रूल के बारे में मालूम है, ना वो बायलॉ को याद रखते हैं, बट वो उनका मानना ये है कि भाई हम सब कुछ जानते हैं। तो द फॉल आउट इज मेंबर्स ड्यूरिंग द एसडीएम और एजीएम दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी टॉपिक पे या किसी इशू पे अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन को मिनट्स में दाखिल करिए, उनको मेंशन करिए कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्शन है आप नोट डाउन करिए एंड इट शुड रिफ्लेक्ट इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सेकेंड चीज, जैसे कि अपना हेमंत जी ने आपको बताया, दोनों साइड से, मैनेजिंग कमेटी के साइड से भी और मेंबर्स के तरफ से भी, ये दे इंडल्ज इन ग्रुपिज्म में इंडल्ज करते हैं। वो जो फ्यू मेंबर्स होते हैं वो 4-5 मिलके इतना एरोगेंस दिखाते हैं और टू प्रूव देयर पॉइंट दे रेज द पिच ऑफ देयर वॉइस। और कई बार हमने देखा है गाली गलौज भी होती है, कई बार देखा है कि मैन हैंडलिंग भी होती है। तो मैं समझता हूं कि ये सारे चीजें जो है बहुत ही गलत है। आप अगर अपने कूल को रखेंगे तो द मोमेंट यू लूज योर टेम्पर यू लूज द बैटल। तो आपका जो इशू है उस पर आप बरकरार रहिए, आप उस पर टिके रहिए, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट इज इट मैटर्स। अभी जैसा कि हम कोर्ट्स में जब अपियर होते हैं तो जज के सामने खड़े होने से पहले हम जज को हम जज का जो अपना सारे चीजें समझ लेते हैं कि किस प्रकार से उनका मिजाज है, किस तरीके से वो अपने केसेस को हैंडल करते हैं, उसी तरीके से हम हमारे केस का स्ट्रेटेजाइज करते हैं, हमारे मूवमेंट्स को, ताकि एक सक्सेसफुल आउटकम हो। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी इशू हो, चाहे वो एसडीएम हो चाहे वो एजीएम हो, आपको अपने कूल को मेंटेन रखना है, आपके जबान पे आपको काबू रखना है, आपके टेम्पर को बिल्कुल दिखाना नहीं है, बहुत प्यार से आपको फर्मली अपने इश्यू को सामने रखना है। अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं मानते हैं तो यू सी टू इट दैट दे रिकॉर्ड इट इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, उसके बाद मेंबर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर टू एड्रेस देयर कंप्लेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीकेज का प्रॉब्लम है तो आपको, अगर सोसाइटी के जिम्मे है तो आपको मैनेजिंग कमेटी को देखना है। अगर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री रिलेटेड है, इंटरनल अगर है, और इंटरनल अगर आपके ऊपर वाला फ्लैट वाला चीज को नहीं मान रहा है तो आपको बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में अप्रोच करना है। या अगर आपको जो इश्यूज डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास है आपको वहां पे ले जाना है। उदाहरण के तौर पे जब इलेक्शन होता है, जब तक आपका इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होता है तब तक वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के परव्यू में आता है। एक दफा इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके बाद आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आपको ये मैटर को कोऑपरेटिव कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। Remember, it is not always possible to fight your case under one banner. अभी कैसा होता है कि आपकी सोसाइटी फॉर्म हो गई है, कैसा होता है कि जैसा कि आपने बिल्डर से लिया, हैंडओवर हो गया, तो जो बिल्डर ने जिस तरीके से काम करवाया है उसका एक सर्टेन डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है, वो करीबन 5 साल तक होता है, और 5 साल तक फ्रॉम द डे द एक्शन इज टेकन, यानी द कॉज ऑफ एक्शन। तो अभी लोग कैसा करते हैं, उदाहरण के तौर पे मेरे ही सोसाइटी में उन्होंने 4 साल निकाल दिया सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में इस चीज को डिस्कस करते करते। मैनेजिंग कमेटी फॉर्म हो गई है, 4 साल निकल गए हैं। दूसरी चीज, फेडरेशन फॉर्म हो गई है, तो वो यही सोच के चल रहे हैं कि भाई फेडरेशन के थ्रू हम लड़ेंगे, मैनेजिंग कमेटी के थ्रू हम लड़ेंगे, मगर ऐसा नहीं है। आप सारे मेंबर इकट्ठा होके अंडर वन पिटिशन, आप रेरा में भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, आप कंज्यूमर कमीशन में भी आप फाइल कर सकते हैं, मेकिंग इट अ वन पिटिशन, भले ही कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो।
तो आपको मतलब है ये वेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई सोसाइटी केस को आगे बढ़ाएंगे। चलो अगर सोसाइटी ने आगे नहीं बढ़ा रही है, वी डोंट नो व्हाट द रीजन इज, तो आप फेडरेशन को देखते हैं कि भाई फेडरेशन हम मेंबर्स के तरफ से लड़ेंगे, मगर अगर वो भी नहीं आगे जाते हैं तो आप सारे मेंबर्स आपस में इकट्ठा होके you can file a civil case also, you can file a criminal case also, you can go to the you can file a case in RERA also, collectively as individual members under one petition. ये मैं आपको बताऊं, मैं 40 साल से ये मेरा अनुभव रहा है और 99% चाहे मैंने आरटीआई यूज किया हो, चाहे मैंने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट को यूज किया हो, चाहे मैंने प्रिवेंशन ऑफ डिले एक्ट को किया हो, या मैंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास साधारण कंप्लेन फाइल की हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मुद्दे को लेके फर्म रहे, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट, you have to mind your language, आपको आपके बॉडी लैंग्वेज को चेक में रखना है और आपको जो भी कंप्लेन फाइल करना है आप करिए। मैं आपको मेरी सोसाइटी का उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ पे टोटल 9 बिल्डिंग्स हैं, 22 स्टोरीज ईच, और आप समझ लीजिए 2-2 बिल्डिंग की एक सोसाइटी है। हमारे सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। अब पिछले 1 साल से ये जो मेंबर्स हैं इतनी बदतमीजी से व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है। दे आर ऑल वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट बैकग्राउंड, अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं, एमबीए किए हुए लोग हैं, मगर क्या है उनका सारा जो डिस्कशन है वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में है। वो समझते हैं कि भाई हेमंत जी आप एक्शन लेंगे, हम आपके साथ में हैं। जैसे कि आप पॉलिटिकल रैलीज में देखते हैं, एक कॉमन उनका एक थिंकिंग है, आप आगे बढ़ो हम आपके साथ में हैं। तो क्या हो जाता है, सब ये ग्रुप में डिस्कशन तो करते हैं, मगर क्या है हेमंत जी करेंगे या अफजल जी करेंगे या कोई और करेगा, खुद कभी आगे नहीं आएंगे। और जो आगे बढ़ेगा उसको कहेंगे कि भाई हम आपके पीछे हैं, मगर जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपको एक बंदा भी नजर नहीं आएगा। तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप से हटके आपको काम करना पड़ेगा, आपको फिजिकली वो पर्टिकुलर इशू को समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे ही सोसाइटी में था कि भाई मीरा रोड जैसे जगह में सब जगह 2,500 रुपये मेंटेनेंस है, आप 4,500 रुपया मेंटेनेंस ले रहे हो, और इस चीज को लेके वो पिछले 3 साल से झगड़ा कर रहे हैं कि आप हमें दे दो और हम इस चीज को हम देखेंगे। मेरा मानना ऐसे लोगों को ये है कि हर सोसाइटी का एक वॉल्यूम होता है। अभी जैसे हमारे सोसाइटी में 700 फ्लैट है, किसी सोसाइटी में हो सकता है कि सिर्फ 40 फ्लैट हो, या किसी के यहाँ 200 फ्लैट हो, या किसी के यहाँ 300 फ्लैट हो। तो हर जगह स्थिति एक जैसे नहीं होती है। तो आप जब कोई स्टेटमेंट पास करते हो तो इट इज ऑलवेज वेरी गुड कि आप अपने मुद्दे को लेके पहले रिसर्च करें, आप सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के साथ में रिस्पेक्टफुली बिहेव करें, उनके साथ में बैठे, ये एनालाइज करें कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वे व्हाट आर द डिफरेंट हेड्स जिसके अंडर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। आज की तारीख में अमूमन जितने भी सोसाइटीज हैं वो हाउसकीपिंग का एंगेज करते हैं, वो सिक्योरिटी वालों को एंगेज करते हैं, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए सारी चीजें करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जब तक आप उनके साथ में रिस्पेक्टफुली नहीं बैठोगे और इस चीज को नहीं समझोगे कि भाई कितने हेड्स के अंदर एक्सपेंसेस हो रहे और क्या क्या हेड्स पे क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ पे हम कटौती कर सकते हैं, ये आप उनको सजेशन के तौर पे रिस्पेक्टफुली आप उनको सजेशन दे सकते हैं।
आप अगर कहोगे कि जो हम कह रहे हैं वही होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम मेंबर्स की भी गलती है. तो what we need to understand is we have to be firm on our issues. We have to be very very polite. We have to be very we have to check our body language and how we speak. पुराने जमाने में लोग कहते थे इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू से बट हाउ यू से. मगर आज के दौर में मेरा मानना ये है कि जो विषय को लेके आप डिस्कस करते हो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कैसे आप प्रेजेंट करते हो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन 40-45 सालों में. मैं आरटीआई को लेके जो भी डिपार्टमेंट में गया हूं उन्होंने आगे से बढ़ के मुझे चाय भी पिलाया. उन्होंने मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स को उन्होंने ये भी बताया कि भाई अगर पीआईओ यहाँ पे नहीं है, अफजल साहब आएंगे, उनको सारा डॉक्यूमेंट्स पूरा कबाड़ खोल के दे दो, उनको जो चाहिए उनको दे दो. और ये जो तरीका जो मेरा है, इस चीज पे कई ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इसको अंजाम दिया, जिस पे अमल किए. यू वोंट बिलीव 100% रिजल्ट्स उनको मिला. तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि क्या होता है लोग पीछे से आपको चढ़ाते हैं, आप मुद्दे को सही तरीके से सही जगह पे अप्रोप्रिएट तरीके से उस चीज को फोकस नहीं कर रहे हो, उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे हो, उस चीज को फेस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में बात ही कर रहे हो. तो मैं समझता हूँ ये व्हाट्सएप ग्रुप से आप हटके, आप जब कोई भी इशू को लेके मैनेजिंग कमेटी हो, चाहे डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो, चाहे कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या कंज्यूमर कमीशन हो, जब आप जाते हैं थोड़ा होमवर्क करके जाइए, थोड़ा रिसर्च करके जाइए और आप अपने बॉडी लैंग्वेज को संभालिए, अपने जबान को संभालिए. You won't believe you will get 100% results. There can be exception of maybe 1 or 2% होता है. जैसे कि जब हम आरटीआई फाइल करते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आपको पीआईओ कभी भी रिप्लाई नहीं देगा जब तक कि आपका फर्स्ट अपील जो डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर या एसीपी हैंडल करता है, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, जब आप उनसे मिलते हो वो देखते हैं कि आपके केस में कितना मेरिट्स है, उस हिसाब से वो डायरेक्शन देते हैं. तो अगर आपको सोसाइटी मैटर्स पे कोई भी अगर आपको समाधान चाहिए, यू विल हैव टू चेक योर बॉडी लैंग्वेज. आपके जबान पे काबू करिए, आप अपने जबान, आप अपने टेम्पर को मत लूज करिए एंड बिलीव मी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. हमने एक नहीं 40 साल में हमने हर डिपार्टमेंट से डील किया है. हमने हमेशा ये देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि जब एक एक्टिविस्ट किसी डिपार्टमेंट में अप्रोच करता है या कोई मेंबर अप्रोच करता है तो वो बहुत रूडली पेश आता है. आपको अगर कोई भी चीज की जरूरत हो और आप अगर वो ऑफिशियल के जगह में हो, तो अगर मुझे आपसे कोई भी चीज चाहिए तो मेरे पास 2 तरीके हैं. या तो मैं आपको ठुड्डी पे हाथ रख के प्यार से रिक्वेस्ट करके मांगू, या आपको मैं थप्पड़ मार के आपसे वो चीज का समाधान मांगू. तो अगर आप उनके जगह में रहेंगे और आपसे अगर कोई बदतमीजी करेगा तो वो आपको देना भी चाहेंगे तो वो नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि आपने उनके ईगो को आपने ठेस पहुंचाई. तो आप अपने आप पे नियंत्रण रखें. अब आप अपने इशू को सही फोरम में सही जगह आप उसको लेके जाइए, आपको 100% समाधान होगा. एक जनरल चीज मैं आपको बताऊंगा डिपार्टमेंट के तौर पे, जैसे कि बीएमसी है. क्या हो जाता है नॉर्मली, एक आदमी जो है एक कंप्लेन, एक लेटर का कंप्लेन का लेटर बनाता है, उसमें झाड़ का भी इशू डाल देता है, उसमें आपका स्पीड ब्रेकर का भी डाल देता है, उसमें मुख्तलिफ तरीके के कंप्लेन्स डाल देता है. तो जब क्या होता है, जब आप ये लेटर कंप्लेन कार्ड डिस्पैच सेक्शन में आप जमा करते हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है. वहां से 3-4 दिन के अंदर वो जो पहला इशू है वो डिपार्टमेंट में
वो डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो इशू है उसको वो एड्रेस करते हैं डिपार्टमेंट वाले, और बाकी के जो इशू है वो आपका डायरेक्टली कचरे के डब्बे में चले जाता है। तो जब आप कोई भी कंप्लेन करते हैं तो आपको ये देखना है कि भाई स्पीड ब्रेकर है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रिलेटेड है, झाड़ का है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में वो जाना चाहिए, पानी का इशू है तो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो ये सारे चीजें आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। और आज के टाइम पे गूगल एक बहुत बड़ा टूल है, उसमें आप रिसर्च करिए। और व्हेन यू प्रेजेंट योर केस, तो आप सेक्शन के तरीके से आप मतलब यानी बी पोलाइट बट बी फर्म, वो सेक्शंस को यूज करिए, अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को वो अलग अलग एड्रेस करिए, तो आई एम श्योर कि आपका समाधान होगा। सिमिलरली हमने ये देखा है कि वार्ड लेवल पे जब लोकशाही दिन होती है या महीने के 2 दिन पब्लिक ग्रीवेंस डे होता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग यही एक चीज करते हैं कि जब वहां पे आप जाते हैं कंप्लेन लेके, तो एक ही कंप्लेन लेटर में आप 25 चीज डाल देते हैं। आपको फोकस रहना है, आपको एक या मैक्सिमम 2 इशू को लेके जाना है और उस पर आपको समाधान होगा। ये मेरा पर्सनल ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि म्युनिसिपल कमिश्नर के जो लोकशाही दिन हुआ, तो जब भी मैं कोई मुद्दा उठाता हूं तो आई फोकस ऑन वन पर्टिकुलर इशू। अभी एक यारी रोड में मोबाइल टावर का इशू था, वो मैनेजिंग कमेटी सारे पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच करी, उन्होंने कहा कि भाई अफजल भाई के मैटर में हम एंटर नहीं करेंगे। जिस दिन डिमोलिशन का नोटिस आया उनको, और जिस दिन वो जेसीपी आए डिमोलिशन, ये सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के साथ में जाके डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में बैठ गए। डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर ने मुझे डायरेक्टली फोन किया और उन्होंने बोला कि अफजल भाई मैंने इनको बताया आपके मैटर में हम इंडल्ज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाता है कि जब आप कोई भी चीज को लेके जब आप होमवर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप लॉ पॉइंट्स को सामने रखते हैं, और जब आप उस सारे चीजों से इक्विप होके जब आप कोई चीज को आगे प्रेजेंट करते हैं और सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो आपको 101% आपका समाधान होना बाकी है। ओवर टू अपना हेमंत जी। Thank you, Mr. Mohammad Afzal, for sharing your knowledge and experiences for the benefit of all our friends here over here. We will take a 2 minute break जी before we start our question and answer session. Please hold on till then.
Thank you, friends. Now we can take up questions by all our friends here. Questions सिर्फ आज ही के टॉपिक के ऊपर हो. आज का टॉपिक है हमारा मेंबर वर्सेस मैनेजिंग कमेटी. अच्छा व्यवहार, वाद विवाद, डिस्प्यूट्स, सोसाइटी में नॉन ट्रांसपेरेंसी होती है, मिसमैनेजमेंट होती है, इसी के ऊपर आप अपना प्रश्न पूछिए. प्लीज डू नॉट आस्क एनी नॉन टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. आपके स्क्रीन पर देखिए एक हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक करिए. We will take up questions in sequence. Only one question per person will be taken up. While asking questions, please switch on your video. Thank you. Our first question is by Mr. Kishan Bhosle. Mr. Kishan Bhosle. Okay, we will take up next question by Mr. Femin Haria. गुड इवनिंग हेमंत जी एंड अफजल जी. हमारे सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर फंड हुआ है और जो आप लीकेज का इश्यू बताया, अभी एक रिपेयरिंग का काम चल रहा है जिसमें ड्राई एरिया में उन्होंने वॉशरूम को शिफ्ट कर दिया. पूरा ड्राई एरिया जो होता है वहां पे पूरा वॉशरूम शिफ्ट कर दिया. वो ड्राई एरिया का वॉल निकाल के उसको Okay, he has left the meeting. Oh, We will take up next question by Mr. M.H. Kapadia. Mr. M.H. Kapadia. Yeah, can you hear me, please? yeah. Both of you, Hemanji and Mr. Afzal, you very rightly and correctly said that the minutes are not recorded many times properly. Okay? And जैसे आपने बिल्कुल दोनों ने सही बताया कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पर पीछे कोई नहीं होता है. कोई नहीं. And I am told by the deputy registrar when I asked that the minutes are wrong, he said, "Don't come to me for that. Go to the cooperative court." अभी सवाल ये है कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है एजीएम का और कोई आपके साथ आने को तैयार नहीं है. How will you prove that the entire minutes is wrongly recorded? And this is the problem of so many societies I have seen. देखिए इसमें कैसा है कि देयर इज अ क्लियर कट गाइडलाइंस और सर्कुलर है कि एजीएम हो तो उसमें रिकॉर्डिंग इज मैंडेटरी. अब तो आपको वहाँ पे वो आपको पहले से आप सर्कुलर उनको मालूम होता है कई बार, मगर वो मैनेजिंग कमेटी इसमें आगे पीछे होती है. देयर इज सम डिस्टर्बेंस. हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, yes. Okay. 1 minute, Mr. Afzal, 1 minute. All members are requested to keep their microphones on mute. Otherwise, I will just simply remove them. Thank you. Mr. Kapadia and Mr. Mohammed, please go ahead. Yeah. तो क्या हो जाता है, इट इज नाउ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करें, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर कोई मेंबर उसका कॉपी चाहता है तो वो अब कॉपी उनको प्रोवाइड करें. जहां तक कोऑपरेटिव कोर्ट की बात आती है, आज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ अमूमन सिस्टम बहुत स्लो है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, और आपको कोऑपरेटिव कोर्ट बोलिए या कोई दूसरे अपना कमीशन बोलिए तो काफी अरसा लग जाता है एक सिंपल साधारण केस को लेके. तो इसीलिए आपको आपके जो भी मुद्दे हैं आप प्यार मोहब्बत से रिस्पेक्टफुली और सही जो तरीका है, प्रोटोकॉल है, उस तरीके से मैनेजिंग कमेटी के सामने रखिए. एंड ओनली इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट देयर देन यू कैन मूव टू द अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. जहां तक वो आप बता रहे हैं कि बाथरूम को उन्होंने शिफ्ट किया हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए, सॉरी मैं आप ही ने बोला था ना बाथरूम का? नो सर. अच्छा, ओके. मेरा क्वेश्चन जी, ओके. आप जो बता रहे थे बाथरूम का, ये आप समझ लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके लिए कोई परमिशन नहीं मिल सकता आपको, और
किसी ने भी अगर किचन को शिफ्ट किया है या बाथरूम के ड्रेनेज सिस्टम से छेड़ाछाड़ी किया है, तो आप बिल्कुल बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा. नो सर्कमस्टेंसेस में anybody can change the drainage system. So this is a thumb rule. जी. Thank you, Mr. Kapadia. Next question is by Mr. Femin Haria. सर ये क्वेश्चन जो आपने दिया, लेकिन मेरे पास भी एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर यही बाथरूम वाला जो क्वेश्चन है उसका ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट ऑलरेडी हो चुका है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने परमिशन दिया है आप काम करो. मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को बताया कि भैया आपने परमिशन कैसे दिया इसको ये काम करने के लिए, यू हैव टू विजिट द उसका हमारे पास वॉचमैन है, सिक्योरिटी है, मैनेजर है, सब कुछ है, आप जाइए और उसको स्टॉप कराइए. वो बोलता है मेरा ये ड्यूटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर तो ये जिम्मेदारी तो मैनेजिंग कमेटी की, मुझे कैसे पता चलेगा उसके घर में क्या चेंजेस हो रहे हैं. नहीं, देखिए इसमें कैसा है, वंस द एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड, तो जो मैनेजिंग कमेटी है वो उनका रोल खत्म हो जाता है वहां पे. आप समझे, कई बार ऐसा होता है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार 3 लोगों को फ्रॉम विद इन द बिल्डिंग अपॉइंट करता है एज एडमिनिस्ट्रेटर. तो और अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर आपसे कहता है कि भाई उनको परमिशन दे दिया कि भाई वो बाथरूम को चेंज कर दीजिए, उसका ड्रेनेज लाइन चेंज कर दीजिए या किचन का ड्रेनेज लाइन चेंज कर दीजिए, तो ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. Under no circumstances BMC permits anybody or under any circumstances to change the drainage line. और अगर वो करते हैं तो you can take up this matter with the building and factory और subsequently MRTP Act के तहत वो BMC के कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है. Thank you, Mr. Haria. Next question is by Ms. Saroj Sharma. Ms. Saroj Sharma. Hello. Yes. Good evening. Good evening. हाँ, रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरे आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है. हेलो हेलो सर. हाँ जी बोलिए. हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जो सोसाइटी, ये हमारी जो सोसाइटी है सर, वो तो रजिस्ट्री है सर कि ये यहाँ की सोसाइटी सरोज मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप माइक्रोफोन एडजस्ट करके बाद में फिर से आ जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर नीलेश पुरोहित. गुड इवनिंग हेमंत जी, गुड इवनिंग अफजल जी. मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस मुद्दे पे फॉर एग्जांपल पार्किंग हो या कोई डॉक्यूमेंट्स आपको मैनेजिंग कमेटी से लेने हैं और उस चीज के लिए जब भी आप उसको लेटर देते हो एंड यू एक्सपेक्ट एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेम, और अगर मैनेजिंग कमेटी एक्नॉलेजमेंट नहीं देती, उस चीज में क्या करना चाहिए? आप या तो उसको स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, दैट्स अ वैलिड पोस्टल वे ऑफ सेंडिंग योर लेटर. और अगर पार्किंग को लेके अगर वो समाधान नहीं करती हैं तो दैट विल गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट. ट्रू. लेकिन अगर हम उसको स्पीड पोस्ट से विद या तो रजिस्टर एडी से भेजते हैं, तो दैट डज नॉट शो कि वही पेपर हमने उनको दिया था. वो ये भी कह सकते हैं इन केस ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार के हियरिंग में कि ये लेटर हमें मिला ही नहीं था, हमें कोई कोरा कागज भेजा था या कोई और ये दिया था, ऐसे. So how can we is there any bylaw which tells managing committee that enforces managing committee to give acknowledgement on members letters? देखिए आज के तारीख में जितने मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजिंग सोसाइटी जो होती है वहाँ पे ईमेल आईडी शेयर की जाती है, कॉमन ईमेल आईडी शेयर की जाती है.
आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, बट रिमेंबर व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई भी मैसेज विल नॉट स्टैंड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो आप ईमेल के थ्रू कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से जहां तक सेक्शन का सवाल है, मेरे ख्याल से हेमंत जी आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। पुरोहित जी, आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपके वार्ड के हैं, उनको आप एक लेटर लिख दीजिए कि ये लेटर मैंने सोसाइटी में भेजा था, सोसाइटी रिफ्यूज कर रही है। स्पीड पोस्ट भी भेजा था, स्पीड पोस्ट भी वापिस आ जाता है, ये सब बहाने लेके। तो आपसे निवेदन है कि ये आप लेटर अपने एनवलप में सोसाइटी को फॉरवर्ड कर दो। एक दूसरा, आपके साथ में एक दो लोगों को विटनेस बना लो, सोसाइटी की दीवार पे चिपका दो नोटिस, और कंज्यूमर कोर्ट में भी आप इस चीज का समाधान के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। So next question is by Mr. Vikrant Jindal. Jindal sir. Mr. Vikrant Jindal. Okay. Next question is by Mr. Anil Patil. Mr. Anil Patil. Please unmute yourself, sir ji. Mr. Anil Patil. Okay. Next question is by Bala Sahab. Mr. Bala Sahab. Hello sir, good evening. I'm sorry sir. सर जी. Sir, sorry sir, मेरे लैपटॉप का कैमरा डिसेबल है. So can I continue with this or I have to connect through No my sir, we are not allowing that. It is against our webinar policy. Okay sir, I will join. Try to adjust it and come later on, sir. Okay sir, I will join from my mobile. Okay sir. Yes, please. Next question is by Mr. Mrinali. Can I ask you? तोंडवलकर. Hello. मृणाली तोंडवलकर. सर, मी इलेक्शन बद्दल विचारू शकते का? येस मॅडम. हा सर, आमच्या 6 वर्ष 2016 मध्ये इलेक्शन झालेलं होतं सोसायटीचं, आणि गेल्या 2021 मध्ये MMRD कडून आमचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे बँड्रावरून. त्यांनी सोसायटीला लेटर पाठवलंय की तुम्ही 2021 मध्येच इलेक्शन घ्या म्हणून. पण आता 2023 झाली, अजूनपर्यंत सोसायटीने आम्हाला त्या पत्राचं सांगितलं सुद्धा नाही की लेटर आलेलं आहे, इलेक्शन घ्यायचं आहे म्हणून. पण आम्हीच आता पाठीमागे लागून की का नाही घेताय, 6 वर्ष होऊन गेली, तुम्ही का नाही घेताय असं सांगितल्यावर त्यांनी आता खूप आम्ही मीटिंगमध्ये केल्यावर ते बोलले ठीक आहे, करतो. आम्ही 11 जणांना तयार केलं आणि आता त्यांच्याकडे लिस्ट दिली, पण त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी 15 दिवस घालवले. आज कशाला एवढ्या लवकर घाई काय तुम्हाला, आम्ही करतो. म्हटलं नाही, व्हायलाच पाहिजे. मग आता त्यांनी लेटर वर्डवर परवा त्यांनी नेऊन दिलंय. पण आता आमच्या बिल्डिंगमध्ये असे आहेत, जास्तीत जास्त लोक 60 वर्षावरती ओनर आहेत, आणि सहयोगी सभासद एकालाही त्यांनी बनवून घेतलेलं नाहीये. आणि आता जे उभे राहणारे आहेत, तर त्यांची मुलं राहायला तयार आहेत. तर अध्यक्ष, सेक्रेटरी किंवा खजिनदार या पदासाठी सहयोगी सभासद उभे राहू शकतात का सर? हेमंत जी, आप बताइए, क्योंकि मराठी में आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. आप बताइए. मॅडम, असं आहे की असोसिएट मेंबर म्हणजे सहयोगी सभासद इलेक्शन अनाऊन्स व्हायच्या पूर्वीच अप्रूव्ह करून रेकॉर्डवर घ्यायला लागतो, आणि जर रेकॉर्डवर नाही घेतलेला आहे तर ते इलेक्शनला उभा राहू शकत नाही. पण सर, ही प्रोसिजर त्यांनी केलीच नाहीये अजून कोणती. फक्त त्यांनी परवाच आता लेटर फक्त सबमिट केलेलं आहे, बस. त्या व्यतिरिक्त कोणतीच प्रोसिजर झाली नाहीये. मग ही सहयोगी सभासदाची प्रोसिजर कधी करायची सर? इलेक्शनची तारीख अनाऊन्स करायच्या अगोदर, म्हणजे एक लिस्ट असतो, त्याला म्हणतात प्रोव्हिजनल वोटर्स लिस्ट. ते पब्लिश करायच्या 1 महिन्याच्या अगोदर ते सभासदचं, सहयोगी सभासदचं ऍप्लिकेशन आणि 100 रुपयाची फीस मॅनेजिंग कमिटी किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटरला हँडओव्हर करून ते अप्रूव्ह करून घ्यायला लागते. मग त्यांचं नाव प्रोव्हिजनल मेंबरशिप लिस्ट मध्ये जोडू शकतो. एकदा जोडलं तर नंतरच ते इलेक्शन लढू शकते, नाहीतर त्याला इलेक्शन लढायला होणार नाही. अच्छा
सर पण हे 3 मुख्य पदावर ते राहू शकतात का सहयोगी हो सभासद? मॅडम, एकदा प्रॉपरली सभासद झाले हां. हे असोसिएट मेंबर, ते तर कुठल्याही पदावर उभा राहू शकतात ते. ठीक आहे. आणि सर 11चे 11 मेंबर सहयोगी सभासद असतील तरी चालेल का की नाही चालणार आहे सर? चालते की मॅडम, देर इज नो प्रॉब्लेम. थँक्यू सर. ड्यू प्रोसिजर केलं प्रॉपरली, कानून कायदा व्यवस्था केलं हां. तर तुम्ही हे करू शकता. ठीक आहे सर. थँक्यू सर. थँक्यू. Can I ask you my question? Mr. Anil Patil, are you there? Yes, sir. Okay, please go ahead, sir. Okay. So, good evening, all of you. Good evening. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे सोसाइटी में, मतलब हमारी सोसाइटी इवन एंड ऑड आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी है, तो क्या होता है गैलरी के बाजू में स्पेस रहता है, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे आयरन प्लेट लाके वो जगह यूज में ली है, तो कमिटी मेंबर वर्सेस और वो जो दूसरे मेंबर है उनके इसमें डिस्प्यूट हो गया हमारा, तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो जो आयरन प्लेट डाला है और जगह यूज कर रहे आप यूज ना करें, और दूसरे लोग उसका अनुकरण भी करना शुरू कर दिया है. So what are the options as a committee members we have? Can we log in complaint to PCMC civil department, or please share your opinions on that? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका अप्रूव प्लान है आपके पास के नहीं है. बेस्ड ऑन योर अप्रूव प्लान, अगर उन्होंने कोई भी चेंजेस किया है या इंक्रोचमेंट किया है, तो यू हैव टू अप्रोच द building and factory department of the BMC. Okay. And accordingly they will immediately issue the notices and take appropriate action. Okay. जिन्होंने encroachment किया है या जिन्होंने violation किया है, फिर वो मैटर अगर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री अगर उनको नोटिस देती है, तो ये भी नोटिस देगी कि हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, यस. ओके. नोटिस दे के वो आप उनको बोलेंगे रेक्टिफाई करने. अगर वो रेक्टिफाई नहीं करती, रिस्टोर नहीं करती हैं, देन दे विल गो अहेड एंड फाइल केस इन द BMC कोर्ट अंडर द MRTP एक्ट. ओके. और हमने सर उनसे कांटेक्ट किया, जो 2 लोगों ने किया है, तो उनका कहना ये है कि बाकी मेंबर्स ने सेफ्टी ग्रिल्स जो लगाया है, दिस इज आल्सो इलीगल. सो उनका कहना बराबर है कि नहीं? एक्चुअली हमें आपसे ही जानना था. जी नहीं, कैन यू जस्ट रिपीट? सेफ्टी ग्रिल्स जो लगाते हैं हम गैलरी में, वो भी इलीगल है उनका कहना है. हमने जैसे इलीगल काम किया है, तो बाकी लोगों ने भी इलीगल ऑलरेडी बिल्डिंग में है, तो ये देखिए, लेटेस्ट पोजीशन ये है कि BMC has started allowing safety grills, बट उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको एक पोर्शन आपको ओपनेबल होना चाहिए, so that if there is any kind of fire or anything, तो एक escape route होना चाहिए. तो उसका एक सर्कुलर भी लिखा हुआ है. I had the circular, but currently I cannot locate it क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क खराब हो गया था. But that circular is there. आप गूगल कर सकते हैं और आपको वो सर्कुलर मिल जाएगा. Okay sir, thank you. Thank you Mr. Patil for joining. Next question is by Saroj Sharma. Saroj Sharma. Good evening sir. पूछिए. सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये सोसाइटी इसको रजिस्टर्ड नहीं है सर, और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि बिल्डर जो है ये सोसाइटी की फाइल नहीं दे रहा है सर. क्या रिपीट करेंगे आप? सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है. सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, एडॉक सोसाइटी है. जी सर. ओके. इसमें क्या है सर? मेरा पहला क्वेश्चन क्या है सर कि इसमें जो सोसाइटी का जो बिल्डर है, ये सोसाइटी की फाइल नहीं सौंप रहा है, हैंड ओवर नहीं दे रहा है.
हैंडओवर की इसने चाबी तो दे दी है सर सोसाइटी की, लेकिन वो फाइल नहीं दे रहा है सर। नहीं तो आप क्या करिए, देखिए जब हैंडओवर होता है तो बाकायदा पुलिस साथ में आती है, पंचनामा होता है, वीडियोग्राफी होती है और वो वीडियोग्राफी के तहत चाबी हैंडओवर की जाती है। उसके बाद सोसाइटी मतलब मैंने बिल्डर को लेटर जाता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के तरफ से कि आप जितने भी फाइल्स हैं हैंडओवर करिए। अगर वो हैंडओवर नहीं करते हैं तो यू कैन फाइल अ कंप्लेन विद द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड अंडर द रेलिवेंट सेक्शन वो उनसे वो फाइल्स आपको दिलवाएंगी। अदरवाइज व्हाट ही विल डू इज ही विल अपॉइंट एन ऑफिसर और वो ऑफिसर आके अगेन पंचनामा के तहत वो आपको सारे फाइल्स हैंडओवर करेगा। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन, एक तो ये कमिटी रजिस्टर्ड नहीं है, कमिटी रजिस्टर्ड नहीं है तो हेमंत जी, if the committee is not registered then the complaint cannot be entertained. You have to She make also says that her society is not registered. society is not a ad hoc If the committee. society is not registered, then there is no question of committee or whatever. हाँ First and foremost, the liability और responsibility या कुछ भी अगर करना है तो पहले एक एंटिटी तो रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एंटिटी का हक बनता है कुछ भी प्रश्न उत्तर करना या कुछ भी करना। इनके केस में तो सोसाइटी रजिस्टर ही नहीं है, तो हैंडओवर मैनेजिंग भी कमेटी लीगल हो या इलीगल हो, जी सोसाइटी रजिस्टर नहीं तो हैंडओवर किसको करोगे, मुझे करोगे या आपको करोगे? दैट इज अ क्वेश्चन ना कि जब रजिस्टर्ड नहीं है तो हैंडओवर कैसे मिला? पर सर यही हो रहा है, यही झगड़ा हो रहा है मेंबर के बीच में, यही हो रहा है कि पहले जो चेयरमैन था वो ऐसा कहता है कि सोसाइटी की चाबी हमें बिल्डर ने सौंप दी। अब वो क्या हुआ, उसने रिजाइन दे दिया चेयरमैन के पद से। एक तो टेम्परेरी चल रहा था, रजिस्टर हुई नहीं थी सोसाइटी। आपका ये कहने का मतलब एक मिनट अफजल साहब, सरोज मैडम, आपकी सोसाइटी रजिस्टर है या नहीं है? नो सर, रजिस्टर नहीं है। नहीं तो आप कोई भी प्रकार का रिलीफ बिल्डर से या जो आपके चेयरमैन है वो सब नकली है। कोई भी आदमी सोसाइटी रजिस्टर करे बगैर अपने आप को चेयरमैन, सेक्रेटरी ये वो कुछ भी नहीं बोल सकता, वो गैर कानूनी है। सबसे पहले सोसाइटी रजिस्टर करिए, फिर ही आपका सारा हक ये वो सब बनता है, उसके पहले कुछ भी नहीं बनता है। Thank you Saroj Sharma to join us. Next question is by Bala Sahib. Bala Sahib, are you there? Good evening. Yeah, sir. Can you hear me? Yes, please go ahead. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे सोसाइटी में 106 मेंबर्स है, लेकिन आउट ऑफ 106 104 मेंबर्स के पास खुद का पार्किंग है, अलॉटमेंट है उनके पास, बिल्डर ने दिया हुआ, लेकिन 2 मेंबर के पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है। तो उसमें से एक मेंबर जो है, जो हमेशा विजिटर पार्किंग में गाड़ी लगाता है 4 साल से, उसको किसी ने उसका गाड़ी निकाला नहीं है, कुछ नहीं किया है। देन उसने अभी हम कमेटी को लेटर दिया है कि मुझे पार्किंग अलॉट करो। तो हमने बीच में क्या किया था सर, पार्किंग के एज पर बायोलॉ कुछ रूल्स नहीं है ज़्यादा उसमें, तो हमने पार्किंग के रूल्स का एक ड्राफ्ट बनाया था जो लोगों के साथ हमने सर्कुलेट किया लोगों के बीच में। तो उसका डिसीजन हम एसडीएम में लेंगे, हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम सब जो लेट्स से हम 30-40 रूल्स कुछ बनाए थे हमने, उसका डिस्कशन एसडीएम में करके उसको फाइनल करके हम वो रजिस्टर ऑफिस देने वाले थे रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि वो तुम्हारा एसडीएम जब होगा तब होगा, लेकिन मुझे पहले मेरा पार्किंग अलॉट करो। लेकिन वो चाहता है कि हम वो पार्किंग उसको फ्री में दे विदाउट एनी चार्ज। तो इज इट पॉसिबल? देखिए मेरे ख्याल से आज के तारीख में जो रूल है 5% ऑफ द पार्किंग हैज टू बी रिजर्व फॉर द विजिटर्स। बट चले अगर 2 लोगों का मसला है तो सोसाइटी में ये भी प्रोविजन है कि रोटेशनल तरीके से भी उस चीज को पार्किंग को अलॉट किया जा सकता है लॉटरी बेसिस पे। ओपन स्पेसेस सर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट 11-12 पार्किंग फ्री है। हाँ, एज ए कमिटी मेंबर, एज ए सेक्रेटरी हम उनको पार्किंग अलॉट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा बोलना ये था उनको कि लेट्स डिस्कस इन एसडीएम फर्स्ट कि हम वो चार्जेस पहले फाइनल करेंगे, कितना चार्ज लेना है, क्या करना है, पर मंथ या पर ईयर लेना है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनल करने के बाद देन वी विल अलॉट योर पार्किंग ऑन। आपकी जो प्रेजेंट कमेटी है वो कितने सालों से है? सर लास्ट ईयर फेब में चुनी है कमेटी सर, बाय प्रॉपर रजिस्टर ऑफिस से इलेक्शन हुआ होके चुनी है। ओके, तो एक साल हो गया अपना, उस दौरान एजीएम हुआ था?
एजीएम हुआ है सर, ऑडिट भी हुआ है हमारा लास्ट अब तक का पूरे साल का। तो जिस वक्त जब एजीएम हुआ था तो ये इशू आया नहीं था? नहीं, तब तक नहीं आया था। नहीं, उसके पहले उन्होंने लेटर दिया था, देन उनको हमने बोला था कि हम एसजीएम में डिस्कस करेंगे, पार्किंग के लिए हम अलग सेपरेट एसजीएम रखेंगे, एजीएम हम सिर्फ अकाउंटिंग के लिए रखेंगे, ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन वगैरह ये सब चीज के लिए। तो एजीएम हो गया, उसके बाद उन्होंने हमको फिर से एक रिमाइंड लेटर दिया। तो उन्होंने रिमाइंड लेटर जब दिया तो क्या लिखा था कि आई एम पेइंग द टैक्स इन कॉर्पोरेशन, पार्किंग का भी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे पार्किंग क्यों नहीं दे रहे आप लोग? तो हमने बोला आपका अगर कॉर्पोरेशन आपके पास से अगर गलत टैक्स ले रहा है तो आपका प्रॉब्लम है, आप अपना अलॉटमेंट लेटर हमको दीजिए, हम इमीडिएटली आपको अलॉटमेंट दे देंगे। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है, then wait for SGM, then we will decide, we will make rules first, then we will allot you the parking on the lease basis or whatever they will decide in the SGM. I think so. This is the right way. This is the right way. I think so. Hemant ji, any comments on that? बाला साहब, आपने बताया कि अकाउंट्स वगैरह आपने एसजीएम में लिया हुआ है। पहला तो वो गैर कानूनी है। एजीएम ऑडिट वगैरह डोंट इंटरप्ट सर, आपका प्रश्न सुन लिया है मैंने। अफजल साहब ने भी अपना कमेंट दे दिया है। लेट मी ऑल्सो प्रोवाइड यू माई फाइनल कमेंट्स। अकाउंट्स है, ऑडिट है, पार्किंग है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एजीएम में आप कर सकते हैं। पार्किंग का विषय बायलॉ से संबंधित है, 78 to 82। बायलॉज का अगर संबंधित इश्यू है तो सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 के अंदर में आता है। वो बायलॉ को चेंजेस करने की बात कर रहे हैं आप, या पार्किंग की पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, तो बायलॉज के संबंधित कोई भी चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजीएम में ले सकते हो, एसजीएम में नहीं ले सकते। दूसरा, आपने ये बोला कि आप पार्किंग का पैसा लेना चाहते हैं उससे। सोसाइटी के अंदर जो भी पार्किंग स्लॉट है वो सभी मेंबर, अगर कम स्लॉट है तो रोटेशनल बेसिस पे उसको यूज करने का अधिकार है, अगर ज्यादा स्लॉट है तो भी उसका हक ऑटोमेटिकली आज बन जाता है। एक पार्किंग एक मेंबर को मिलेगी, ज्यादा स्लॉट हो तो। और आप मेंबर से पार्किंग चार्जेस ले सकते हो, महीने का 100, 200, 500 जो भी है, लेकिन ये 500 रुपये चार्जेस आपको एजीएम में प्रॉपर एजेंडा के साथ में फाइनल करना है, टू डिस्कस एंड डिसाइड पार्किंग चार्जेस फॉर फर्स्ट कार, सेकंड कार, थर्ड कार, फिफ्थ कार, बाइक वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे पार्किंग का डिपॉजिट लूंगा मैं, तब आपको पार्किंग का अलॉटमेंट करूंगा। इसको बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो ये आपकी सोसाइटी ये भी एक गलत चीज कर रही है। मेरा सुझाव आपको ये है कि ये सब इतना डिस्प्यूट और चर्चा करने के बजाय अगर पार्किंग अवेलेबल है तो उसको अलॉट कर दीजिए, आप डिस्प्यूट में मत जाइए, क्योंकि सोसाइटी को खर्चा होगा और उस मेंबर को भी खर्चा होने वाला है और आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। वैसे हम पार्किंग अलॉटमेंट करने वाले हैं सर, एंड जैसे आपने बोला हम एजीएम में इस पॉइंट को लेंगे, एजीएम में नहीं लेंगे, लेकिन सर वो जो चार्जेस है वो लीगल है, मतलब चार्जेस जो 100 रुपीज, 100, अगर आप पार्किंग चार्जेस लोगे 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी कुछ छोटा मोटा पार्किंग चार्जेस हर सोसाइटी में लेते हैं, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि मैं आपको पार्किंग बेचूंगा, उसके 5 लाख दे दो, अगर आप ये बोलोगे कि मैं पार्किंग का डिपॉजिट लूंगा, उसका इतना दे दो, तो ये दोनों चीज गैर कानूनी होगी। उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलेंगे, क्योंकि आप उसका पार्किंग में उसका हक है ऑलरेडी, वो हक के लिए आप उससे पैसा मांग रहे हो। राइट, तो हम उनको अलॉट करेंगे, हम पार्किंग बेच नहीं सकते, दिस इज अगेंस्ट बायलॉ, लेकिन वो अगर वो क्या बोलते हैं कि मुझे पार्किंग फ्री में चाहिए, तो ये सही है या गलत है? कि बाकी 104 लोगों के पास ऑलरेडी अलॉटमेंट लेकर चार्जेस पे नहीं करते, तो मैं क्यों फ्री का मतलब क्या है आपका? आप उसे डिपॉजिट लेने वाले हो या बेचने वाले हो उसको? आप ये 100 रुपीज 200 रुपीज तो एसजी में डिसाइड होगा, लेट्स से 50 रुपीज तक डिसाइड होता है, then we don't have any problem, लेकिन हम उसको allotment, there is a difference between parking deposit, there is a difference between parking sale amount, and there is a difference between parking charges. पार्किंग चार्जेस अगर आप देखोगे तो बायलॉ 65 to 67 के अंदर में कवर्ड है, ठीक है? उसको पार्किंग का बेचना नहीं करना। आपको आज अगर पार्किंग कम है सोसाइटी में तो आप रोटेशनल बेसिस में पार्किंग अलॉट करोगे, जिसके पास जिस घड़ी में पार्किंग होगा, जो एजीएम के टाइम पे पार्किंग चार्जेस डिसाइडेड होगा वो पे करेगा। अगर उसकी गाड़ी सोसाइटी के बाहर खड़ी रहती है
या वो पार्किंग आपको सरेंडर कर देता है आपका अलॉटमेंट लेटर, तो आप उसको चार्जेस नहीं लगाओगे. सो आई विल रिपीट, पार्किंग डिपॉजिट आप नहीं ले सकते, पार्किंग सेल नहीं कर सकते, नहीं करेंगे. पार्किंग चार्जेस अगर लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजीएम में डिसाइड होगा. ओके सर. Anything which is connected to bylaw 65, 66 and 67 cannot be decided in an SGM but only in an AGM. इसके अलावा सब कुछ गैर कानूनी होगा. ओके सर, लेकिन उसका उस टाइम पे ये कहता है कि मैं चार्जेस मींस लीज नहीं दूंगा, आई विल नॉट पे एनी लीज, मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए. उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देना होगा सर आपको. हर मेंबर को पार्किंग अलॉटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाता है. एंड लीज भी लेना नहीं है उसको. जो आप पार्किंग बेच भी नहीं सकते और लीज पे भी नहीं दे सकते. इट इज अ वेरी क्लियर कट थिंग. और एक चीज मैं और आपको बताऊं कि ऑल्दो द एजीएम इज सुप्रीम, बट यू कैन नॉट पास एन इलीगल रेजोल्यूशन. सेकेंडली, अगर आप कोई किस्म का इलीगल चार्जेस लगाते हैं कि इट कैन ऑल्सो अमाउंट टू एक्सटॉर्शन, एंड ही कैन ऑल्सो टेक यू टू द प्राइवेट कंप्लेन जो होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, वहां पर भी आपको लेके जा सकता है. तो ऐसा कोई भी काम मत करिए जहां इलीगैलिटी हो. थैंक यू बाला सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विवेक कुमार. मिस्टर विवेक कुमार. Hello. Thank you so much, Mr. Hemant and Mr. Afzal. First of all, I want to thank you for this great initiative. I'm from Delhi. So, as per the policy of government of Delhi, state government of Delhi, एक पॉलिसी है कि हम लोग लिफ्ट लगा सकते हैं अपनी सोसाइटी में. हमारे यहाँ पे ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर से बना हुआ है. पुरानी सोसाइटी है, 35 years old. तो उस पॉलिसी के हिसाब से हम लोग अपने यहाँ पे लिफ्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि हमारे यहाँ पे शायद एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है. तो क्या हम एडमिनिस्ट्रेटर को भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी परमिशन के लिए, या सिर्फ हमारी जो RWA है वो ही ये परमिशन देगी? और अगर वो परमिशन नहीं दें तो क्या हम इसके लिए रजिस्ट्रार को कंप्लेंट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जब तक देयर इज अ प्रोटोकॉल, रजिस्ट्रार को देयर इज अ प्रोटोकॉल कि एडमिनिस्ट्रेटर का एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, उसके आगे उसको कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है. आप समझे? तो सबसे पहला तो आपको ये करना पड़ेगा, जहां तक मेरी जानकारी है, आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार को अप्रोच करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि आप फ्रेश इलेक्शन कॉल करने के लिए प्रतिक्रिया स्टार्ट करिए. जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो 45 days का होता है. साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड, यू विल हैव टू हैव अ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. आप ऑडिट करवाइए, और आर्किटेक्ट के थ्रू जो है you can definitely put a lift in a private building which is 3 floors. सर, एक्चुअली ऑलरेडी हमारे यहाँ पे इलेक्शन अभी हुआ था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है. तो उस केस में हमें RWA को ही अप्रोच करना पड़ेगा? नहीं, आई मीन वो मैटर को तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चीज है ये एडमिनिस्ट्रेटर एड्रेस नहीं कर सकता, ये मैनेजिंग कमेटी को ही एड्रेस करना है. हाँ, एंड डेफिनेटली द अप्रोप्रिएट जो एनर्जी डिपार्टमेंट है या PWD डिपार्टमेंट है, वहां से आपको डायरेक्टली संपर्क करके आपके प्लान्स अप्रूव करवाने पड़ेंगे. अप्रूव करके ये आपका बिल्डिंग एंड फैक्ट्री से एंड ऑडिट करवा के वो सारे चीजें, उसका जो प्रोसीजर है, यू विल हैव टू अडियर टू द प्रोसेस एंड submit the file with the PWD department. राइट सर. द थिंग इज, अगर हमें हमारी RWA मना करती है ये NOC देने से, कौन मना करती है? सॉरी, RWA. As per the policy of government, we need NOC from RWA. तो अगर RWA वो NOC नहीं देती है तो can we complain to deputy registrar? Sorry, RWA का what is the full form? Resident Welfare Association. Resident Welfare Association. Okay. I think so. You can consult deputy registrar. Okay, sir. वो फेडरेशन है ना? फेडरेशन है.
जी ओके जी जी लास्ट थिंग वन लास्ट क्वेश्चन सर जैसा अभी पहले स्पीकर बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा उसमें मार्गदर्शन दिया कि पार्किंग को बेच नहीं सकते हैं तो जैसे हम लोग अभी जो भी लैंड यूटिलाइज करेंगे अपनी लिफ्ट के लिए इंस्टॉलेशन के लिए तो उसके लिए वी विल हैव टू पे सम अमाउंट टू द आरडब्ल्यू whatever they decide or they can also not sell this land to us because common area में हम लोग यूज कर रहे हैं कोई encroachment नहीं कर रहे हैं किसी भी लैंड पे I mean रोड पे encroachment नहीं कर रहे हैं देखिए जब आप प्लान अप्रूव करवाएंगे बिल्डिंग एंड फैक्ट्री से तो उनकी एक प्रोसेस है उनके जो भी गाइडलाइंस है या उनकी जो भी फीस है वो चीज़ को आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी एंड सब्सिक्वेंटली आप जब पीडब्ल्यूडी को करेंगे तो वो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो भी एनओसीज है सारी चीज़ अगर उनका आपने अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया हुआ है तो डेफिनेटली दे विल गो अहेड एंड गिव यू द sanction but we don't need to pay anything to RWA our society just like parking I don't know मतलब हेमंत जी you would be able to give a better view on that every building has its own common areas designated वो आपके म्युनिसिपल प्लान्स में दिखाई दे जाएंगे कि आपके बिल्डिंग का एरिया और आजू बाजू के कॉमन एरियाज कितना स्क्वायर फीट का है अगर आप उसी कॉमन एरिया आपके खुद के कॉमन एरिया के अंदर आप करना चाह रहे हैं तो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का प्लान अप्रूव करा के आपको आरडब्ल्यूए का एनओसी आपको लगना ही लगना है और अगर आरडब्ल्यूए एनओसी नहीं देती है तो आप सिविल कोर्ट से परमिशन डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं उसके अंदर इसमें रजिस्ट्रार का कोई रोल नहीं होता है ही इज ओनली एट एडमिनिस्ट्रेटिंग और इन्फोर्समेंट करने का उसको हक है एक्ट का लेकिन जो लिफ्ट वगैरह है ये दूसरा डिपार्टमेंट में जाता है म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाता है तो आरडब्ल्यूए का परमिशन लेना है रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का परमिशन लेना है वो डिटरमाइन करेगा कि आपके बिल्डिंग के आजू बाजू के कितने एरिया में फ्री स्पेस है लिफ्ट लगाना है तो कितना स्पेस लगेगा बहुत हो तो 6 स्क्वायर फीट या 7 स्क्वायर फीट लगेगा उतना ओपन स्पेस हमेशा होता ही होता है तो वो आर्किटेक्ट को कंसल्ट करिए आप वहीं से आपको डिटेल और टेक्निकल मार्गदर्शन मिलेगा थैंक यू मिस्टर विवेक फॉर ज्वाइनिंग वी हैव गॉट लेस टाइम only one thing sir if RWA demands if MC demands any money just like parking के लिए बाला साहब बोल रहे थे तो क्या हम लोग उसको that is illegal if they demand any money मुझे एक चीज आप बताइए कि आपकी बिल्डिंग में कितने मेंबर्स हैं 112 flats total they are all in favor as per government policy only 60% consent is required from the first second and third floor so we have that majority yes okay but कितने फ्लोर्स है एक्चुअली में ground first second and third ना तो मतलब इन्हें टोटल सहमति है everybody wants to have the lifts not everybody sir only 60% people they want to have lift okay yes तो मेरे ख्याल से उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मैनेजिंग कमेटी को एनओसी देने में but the demand if they demand any money against this installation of lift like parking के लिए suggest कर रहे थे पहले एक मेंबर तो is that illegal जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि सिविल कोर्ट में you can also approach to get the required NOC and the demand is illegal they demand any money MC if MC demands any money from us I think so they should not be charging you whatever is there जो आपका म्युनिसिपल डिपार्टमेंट जो है वो अगर चार्ज करती है ऑफिशियली दैट्स ऑल यू हैव टू पे अफजल साहब क्या होता है इसमें आरडब्ल्यूए में देयर इज अ स्मॉल कॉम्प्लेक्स okay and many times there are several buildings in an RWA it may be a one building standalone building or there might be many buildings in that but each building has its own common areas according to the building plan आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हो कि एक बिल्डिंग बनी हुई है उसको 2 फीट छोड़ के दूसरी बिल्डिंग बन जाएगी फिर आधा फीट छोड़ के तीसरी बिल्डिंग बन जाएगी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डीसीए रूल्स जो भी है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स उस पर्टिकुलर स्टेट के इट इज अ मैंडेटरी डायरेक्टिव कि 2 बिल्डिंग के बीच में कम से कम 6 मीटर का गैप होना चाहिए मतलब 20 फीट चारों तरफ से इस बिल्डिंग का 10 फीट होगा और उस बिल्डिंग का 10 फीट होगा तो ये हो गया लगभग 6 मीटर अब आपका जो
10 फीट बचा है वो आपका खुद का 10 फीट है, वो RWA का नहीं है. RWA is only for what you can say administration of the common facilities of the society. Each building it's its own unit. And इनके केस में शायद ये होगा कि हर बिल्डिंग में अपना खुद का कमेटी होगी, RWA की कमेटी होगी और शायद खुद की भी कमेटी होगी. हर एसोसिएशन का अपना अपना बायलॉज है, जैसे सोसाइटी के कैसे अपने अपने बायलॉज होते हैं, वैसे हर एसोसिएशन का भी इंडियन सोसाइटीज एक्ट के अंदर में रजिस्टर होता है, उनका खुद का भी बायलॉज होता है. अब उस बायलॉज के अंदर ये प्रोविजन है क्या कि एक कॉमन स्पेस को यूज करने के लिए इतना डिपॉजिट देना पड़ेगा या इतना फंड देना पड़ेगा, वो काउंटर चेक करना होता है. रैंडमली उड़ती बात पे हम ये नहीं बोल पाएंगे कि RWA इतना पैसा मांग सकता है या नहीं मांग सकता है. और ये सारा समाधान अगर बायलॉज में नहीं लिखा हुआ है तो देने की आवश्यकता नहीं है. RWA फिर भी बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए, तो फिर आप सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट फाइल करिए और वहां से म्युनिसिपैलिटी को RWA को डायरेक्शन दिलवा सकते हैं आपकी इनको लिफ्ट कंस्ट्रक्ट करने का या इंस्टॉल करने का परमिशन दिया जाए. ये सारे करने के पहले आर्किटेक्ट का फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ड्राइंग्स वगैरह, म्युनिसिपल का परमिशंस वगैरह सारे सबमिट करना पड़ता है. इट इज ए प्रोसेस एंड इट हैज टू बी डन. Thank you, Mr. Vivek Kumar, for joining. Thank you so much. Next question is by Daryashil. एक चीज मैं ऐड करूंगा. आप सोसाइटी को, आप वो RWA को आप लेटर लिख सकते हैं कि आप आपका बायलॉ मुझे दीजिए, अगर उसमें ये सारी चीजें मेंशन है एंड इफ इट हैज मेरिट्स वी आर रेडी टू पे. तो आप वो मांग सकते हैं उनसे. या Thank you, sir. Thank you so much. So nice. Next question is by Dr. Dhairshil. Dr. Dhairshil. Okay. Next question is by Mr. Vikrant Jindal. Yes, sir. Mr. Hello, Vikrant. can you hear me? Yes, sir. Can you Please hear go me? ahead. Yes, please. सर अफजल साहब, मुझे आपसे पता करना था, जिस प्रकार से आपने बताया है कि ट्री कटिंग के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, लीकेज के लिए बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट, ये न्यूसेंस के लिए कौन सा डिपार्टमेंट होगा? लोगों की बहुत ज्यादा आदत है पान स्प्रेडिंग करने का, या लोगों ने बैल्कनी के बाहर कुंडियां लगाई हुई है, कुंडी में पानी देते हैं, नीचे वाले की गाड़ी खराब हो जाती है, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है? नहीं, देखिए, न्यूसेंस के लिए तो आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार को आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जब AGM होता है या SGM होता है, तो सर्टेन रूल्स कैन बी फ्रेम्ड एंड दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बायलॉज जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के होता है, एंड देन सब्सिक्वेंटली उस पर आप मैनेजिंग कमेटी भी एक्शन ले सकती है. जिंदाल साहब, आप म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स का पूछ रहे हैं जिंदाल साहब? नहीं, मैं डिपार्टमेंट किसको कंप्लेन करे? जो कुंडी जो लगाते हैं बैल्कनीज में, दैट इज द बिगेस्ट न्यूसेंस. नीचे गाड़ियों के ऊपर पानी गिरता रहता है, उसका मैंने मतलब कोई डिप्टी रजिस्टर है या अगर आप शायद आप मुंबई से हैं तो मुंबई में आप हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरा एक है पेस्ट डिपार्टमेंट, इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली कंप्लेन कर दीजिए. अगर डिफेसिंग जिसको बोल रहे हैं ना कि कुंडी लगाया, मिट्टी का पानी गिरा, ऊपर से पान की पिचकारी फेंकी या वगैरह वगैरह, तो ये हेल्थ से कंसर्न है. और डिफेसिंग करना है तो आप बीमारी वगैरह होना है तो ये दोनों डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर प्रवीण पाटिल. Mr. Praveen Patil. Dr. Shitule, are you there? Yes, sir. Please go ahead with your question, sir. मैं बहुत देर तक वेट कर रहा था सर, लेकिन मुझे एक पेशेंट के लिए जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं ड्राइविंग करते करते बात कर रहा हूँ.
प्लीज मुझे अलाउ कीजिए इसके लिए। सर पूछिए, आपका प्रश्न पूछिए, मुझे आपके बारे में पता मेरा है। क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ एक्चुअली सर मैं एक ब्रीफ हमारी सोसाइटी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है, हमारे जो चेयरमैन है उसका जो एरोगेंस है उसके बारे में मुझे थोड़ा क्वेश्चन पूछना था। मैं भी एमसी मेंबर और सेक्रेटरी हूँ। हमारा पिछले साल इलेक्शन हुआ था जिसमें 12 कैंडिडेट चुन के आए थे और हमारा जो पैनल था उसमें जबरदस्ती 2 गाँव वाले घुस गए। हमारा पैनल पूरा चुन के आया। उसके बाद जो गाँव वाला था वो जबरदस्ती चेयरमैन बन गया। अभी हमारा गांव जो हिंजोड़ी है वहाँ पे सिर्फ 3-4 फैमिली है, वो पूरे गांव को रूल करती है हमेशा। तो उनका दर्शन बहुत ज्यादा है और उन्हीं फैमिली में से एक वो है। वो अभी ऐसा है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी पैसे निकालते हैं, किसी भी चीज के लिए देता है। अपने फेवर के जो लोग उसने रखे हुए हैं सोसाइटी में, जो उसके डर के मारे उसका फेवर करते हैं, उनके लिए कुछ भी फेवर करके सोसाइटी का रूल ब्रेक करके वो काम करता रहता है। तो हमारे जो 12 मेंबर्स थे उसमें से हमारे फेवर वाले 7 थे, उसके फेवर वाले 5 थे। तो 7 में से 2 लोगों को उसने डरा धमका के रिजिग्नेशन देने को बोला और उससे परेशान होकर उन्होंने रिजिग्नेशन दिया। अभी हमारे 5 है, उसके 5 है और अभी भी उसका चल रहा है कि हम में से कोई तो निकल जाए। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है सर कि उसको हमें निकालना है तो उसके लिए एजीएम बुला के उसको निकाल सकते हैं क्या, या फिर एजीएम बुला के निकाल सकते हैं? और दूसरा बात यह है कि उसने कहीं से तो इंक्वायरी किया हुआ है कि 5 साल में से सिर्फ 2.5 साल से पहले सोसाइटी डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, 2.5 साल के बाद सोसाइटी डिसॉल्व नहीं हो सकती। जैसे कि हम सोच रहे थे 5 के 5 रिजिग्नेशन देके सोसाइटी ये एमसी डिसॉल्व कर दे, लेकिन उसने कहीं से तो ये इंफॉर्मेशन निकाली कि पहले 2.5 साल में सोसाइटी एमसी डिसॉल्व हो सकते हैं, 2.5 साल के बाद नहीं हो सकते। तो ये सही है क्या? ये तो मेरे क्वेश्चन है। देखिए साहब, आपके जो मेंबर्स जो है ऑफिस बेरर्स, वो लीगली जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इलेक्शन होता है तो द रिटर्निंग ऑफिसर कॉल्स फॉर द फर्स्ट मीटिंग और वो फर्स्ट मीटिंग के अंदर ऑफिस बेरर्स सिलेक्ट होते हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। तो ये जो 3 जब सिलेक्ट हुए थे तो ये सबके अनुमति से हुए थे कि वोटिंग के थ्रू हुए थे? नहीं, वो इंटरनली सबने तय किया था और उसका थोड़ा मतलब सहमति से कॉमन सेंस कंसेंसस के तहत हुआ था ना। तो नाउ दे आर द लीगली अपॉइंटेड ऑफिस बेरर्स। ठीक है, अब क्या होता है कि अमूमन सोसाइटीज में 2 गुट बन जाती है, मगर ये जो क्लैश जब दोनों जुट का होता है तो उसमें नुकसान मेंबर्स का ही होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि या तो आप 5 लोग हैं वो रिजाइन कर जाएंगे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके, या वो 5 लोग करेंगे। तो आप में से दोनों में से कोई भी अगर 5 लोग अगर रिजाइन करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो द ओनली ऑप्शन इज कि आप लोग साथ में बैठ के अपने डिफरेंसेस को ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए, एंड ओनली इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट देन अप्रोच द डेप्यूटी रजिस्ट्रार and he will appoint an administrator, and after a certain period you can again request the deputy registrar to hold fresh election, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो छोटा से छोटा काम भी अटक जाता है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर का देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स एंड सर्टेन ज्यूरिडिक्शंस जिसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है, तो बाकी के सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। तो आप सबसे पहला तो एक काम करिए, एमिकेबली ट्राई करिए इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। सर वो ऐसा आदमी है कि किसी का सुनता नहीं है और वो मतलब उसका ऐसा है कि जो मैं बोलूंगा वही होगा। तो उससे बात करके हमने बहुत साल भर बात किया, आराम से किया, प्यार से किया, थोड़ा झगड़ा करके किया, सब तरीके से किया, वो कुछ मानता नहीं है। तो मुझे जो पूछना था कि उसने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है कि सोसाइटी जो डिसॉल्व हो सकती है वो पहले 2.5 साल में हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती, ऐसा कुछ अपने बायलॉज में नहीं है ना प्रोविजन?
हेमंत जी, डू यू थिंक 2.5 साल है? डॉक्टर शेतोले, ऐसा है कि सोसाइटी 1 हफ्ते के बाद भी डिसॉल्व हो सकती है और 4.5 साल के बाद भी हो सकती है, 5 साल में भी हो सकती है। 2.5 साल का जो आप बंदिश बोल रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, आपके लिए एक सुझाव है, आपने बताया था कि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, एम आई करेक्ट सर? आप सोसाइटी के सेक्रेटरी यस हो? सर। ओके। आप अपने यस लोकल सर। रजिस्ट्रार को एक अर्जी दे दीजिए कि हमारे पास में 1 या 2 या 3 कितनी भी जो वैकेंसीज होंगी उनकी वैकेंसी के लिए हमें एक ऑप्शन करना है। आप अपना एथोराइज्ड ऑफिसर नियुक्त कर दीजिए। वो एथोराइज्ड ऑफिसर आएगा, अर्जी मंगाएगा और सोसाइटी के मेंबरों के बीचों बीच से वो आपकी मैनेजिंग कमेटी का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। उस समय यू टेक योर चांसेस कि आपके टीम के कुछ लोग आ जाते हैं क्या, उसके अंदर आपका मेजोरिटी हो सकता है क्या, तो 2 लोगों को कोऑप्ट कर लीजिए। आपने बताया कि आपका स्ट्रेंथ इस समय 10 का है। आपका स्ट्रेंथ टोटल कितना, 15 मेंबर मैनेजिंग कमेटी का है आपका? नहीं, हमारा 12 लोग चुन के आए थे, उसमें से 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया, अभी 10 लोग हैं। तो आप 2 लोगों को आज के दिन पे कोऑप्शन के लिए अर्जी दे दीजिए सोसाइटी के सेक्रेटरी के सही के अंदर में। वो आएगा, प्रोसीजर करेगा और 2 लोगों को मैनेजिंग कमेटी में कोऑप्ट कर लेगा। वो नोटिस वगैरह घुमाएगा सोसाइटी में, वो सब कर लेगा। तो ना आपका उसमें कंट्रोल रहेगा, ना तो सोसाइटी के आपके बाकी दूसरे 5 जो ऑपोनेंट आप कह रहे हैं जिनको, उनका कंट्रोल रहेगा। तो ये 2.5 साल वाली बात जो है वो कानूनी ठीक नहीं है। आप अपना प्रोसीजर करिए, आपको सक्सेस मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन था कि उसको अगर निकालना है तो एजीएम या एसडीएम के थ्रू निकाल सकते हैं क्या? आप अगेन सेक्रेटरी की हैसियत से आप रजिस्ट्रार को एक नोट दे दो कि हमें ये ऐसा वाला नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना इनके विरुद्ध में। किसी एक आदमी को टारगेट करो, उसको आने दो नो कॉन्फिडेंस पहले, लेकिन ये ऑप्शन वाला कर लो ताकि आपके पास एक वोट एक्स्ट्रा मिल जाए। और उसके बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए रजिस्ट्रार के पास में अर्जी दे दो सेक्रेटरी के सिग्नेचर के अंडर में, उसको आने दो, उसको नोटिस एजेंडा देगा मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में, अटेंड करेगा और वहां पे देख लो दो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है या नहीं होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एसजीएम में या एजीएम में नहीं हो सकता है, वो खाली मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में होगा, दैट टू ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अथॉराइज्ड ऑफिसर बाय द कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, आपके वार्ड का जो भी होगा वो। तो एजीएम में या एजीएम में लेना हो तो ऐसा कुछ रूल है क्या कि 1/3 रेसिडेंट का एप्लीकेशन आना चाहिए साइन करके, ऐसा कुछ? 20% ऑफ द मेंबर्स का अगर रिक्वेजिशन आता है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए और स्पेसिफिक एजेंडा, तो वहां पे आप कर सकते हो ये चीज। जैसे आप मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाओगे, वहां से आपके सोसाइटी के मेंबर को बोलो 20% लोग आपकी अर्जी देंगे कि ये वाले मैनेजिंग कमेटी मेंबर को निकाल देना है इस कारण से। वो उस तरह का एक एसजीएम बुलाओ और उसमें जनरल बॉडी को डिसाइड करने दो कि इनको रखना या नहीं रखना। प्रॉपर एजेंडा प्रोसीजर करना होगा आपको, वो करके भी हो सकता है। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो Thank you, Dr. Shitale. Next question is by Praveen Patil. Praveen Patil. Okay, last question is by Sashi Mishra. Hello. Yes, please go ahead. Am I audible, Hemant ji? Yes, please. Yeah, good evening, Hemant ji. Afzal sir, very good evening to you. It's a lovely session that you guys are doing. Thank you so much. You are enlightening a lot of people and helping us. Good to see that smile on your face, sir. My question is, we have a society of 179 members. We had the AGM and there were a lot of objections, suggestions and all those things.
Now, what the secretary or the managing committee is doing is they are checking those signatures, the flat numbers, the names. They are calling those individual members and they are trying to tell them individually. We are calling them, ki, what is the problem? What do you have? And please withdraw your signatures, or else we take a legal action against you. What is the issue? See, there were previous managing committee members were there for which they have framed charges ki you cannot sell your flat, you cannot give it on rent for whatever reasons what happened during the redevelopment time. Second, there's the ex-secretary, again, he had given a flat to one of the members on humanitarian grounds. And the flat जिसका उन्होंने दिया था, he ultimately sold his flat and he walked out. And he has now filed a case on the society telling that I need a compensation of all these years. He has already sold his rights, titles, everything. And जो legal charges लग रहे हैं, they are trying to put it on the individual member. Against that also, so there are a lot of members who are objecting to this. But the committee is, what they are doing is, they are calling up individual members and they are telling कि अगर आपने अपना signature वापस नहीं लिया इस letter से, तो then we will be framing you in legal charges. Yeah, how do we go about for this? I think so. First of all, ये legal charges जो है, they cannot put it on individual flat owners. Perfect. Because unless the court gives a judgment and the court जब हमेशा जब judgment has to cost, अगर वो mention करती हैं तभी ये ले सकते हैं. But they cannot recover it because normally हर society में ऐसा होता है कि अगर कोई member कोई case करता है और society लड़ती है तो it is illegal for them to charge the other members. क्योंकि क्या होता है, जिसने petition file किया है वो तो अपने जेब से भर रहा है. बिल्कुल. और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि जो मैनेजिंग कमिटी है वो मेंबर से ले रही है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. बिल्कुल. समझे? तो even if they are wrong, they keep on delaying the case for years together. So that is why ये टॉपिक पहले भी आया था. It came in the papers also, and there is a judgment also on this that the legal charges cannot be forced on the members. And secondly, what do you do with these committee members who are calling up individual members and telling them if you don't withdraw your signatures, we will take legal action against you. We will be sending a legal notice to you guys. उसमें एक दो सीनियर सिटीजन है, a Bengali couple, where they have clearly mentioned कि it is democracy. I have voted you. Should I take my vote back after you coming to election? After you being elected? Very beautiful answer what he has given. But he is scared. They meet him on the road. या किसी और को बोलते हैं अरे आप सीनियर सिटीजन हैं, आपका घर जा सकता है, कहीं कुछ हो सकता है. These are the statements made by the secretary in our society. See, देखिए, he can file a case with the police. Okay. That intimidation का भी कर सकते हैं वो. And section 506 ऐसा कुछ है या something, intimidation भी है. And they are trying to extort something. They are asking for some money. No, they are not asking for some money. We have persuaded the member also कि sir आप please complain कीजिए. But because they are senior citizens, all only husband and wife, they are little spectacle. You know, you can understand. At this age where they are above 65, they don't want to get into all those nitty-gritties of. So how do we charge the committee member for this? And the most important part is they are trying to play communal. That is, they are trying to play the communal. You can understand where am I right? Right. Which is absolutely wrong in a cosmopolitan society. Being a senior citizen, I think so. You can file a case with the police, complain with the police for harassment, and as I told you, otherwise, and let the police investigate the matter. Okay. But we can't do anything against the committee members. Yeah. Sorry? We'll take up next question by Mr. Praveen Patil. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Hemant. Thank you. Good day, sir. Good day. Mr. Praveen Patil. Mr. Praveen Patil. Okay. Mr. Rakesh Malhotra. Mr. Rakesh Malhotra. Hello.
सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली जस्ट अभी मुझे समझा नहीं एक बार आप बता रहे थे तो मिस्टर अफजल सर कि मैं किसी मेंबर ने सोसाइटी के ऊपर केस डाला और बाद में मैनेजमेंट कमेटी के पास तो सोसाइटी का पैसा रहता, वो फिर केस तो चलाते रहे तो डिले कर देता है। तो उस जगह पे कौन सा आया था केस क्या निकाल जो आप बता रहे थे, वो समझ में आया जो। आप रिपीट करेंगे जरा? हाँ, जैसे होता है ना कि आउटसाइड मेंबर ने केस डाल दिया सोसाइटी पे, सोसाइटी का खुद का पैसा है तो कमेटी अपना आराम से चलाते रहती है केस, जी वो खुद गलत होने के बाद देती है। तो उसके ऊपर कुछ ऐसा निकला है क्या कि सोसाइटी मेंबर के ऊपर फोर्स नहीं कर सकती कि उसका देना है पड़ेगा, कमेटी ही भरना पड़ेगा कमेटी को, ऐसा कुछ? देखिए, आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं एक केस का उदाहरण दूंगा। जैसे कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है, उसका एक सर्कुलर निकला था कि इट कैन नॉट बी चार्ज more than 10% of the service charge. But there were so many societies, in spite of the circular, they had been charging on the entire maintenance bill. और वही नहीं, I have come across societies जहाँ पे उनको साल का 800 रुपये लेना था, वो 15,000 रुपये ले रही थी। ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में जब कोऑपरेटिव कोर्ट में ये केस दायर हुआ, I'm fighting that particular case. जब वो केस दायर हुआ तो ये मैटर चल रहा है, it's an open and shut case कि भाई नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस शुड बी 10% ऑफ द सर्विस चार्ज। उन्होंने अपने क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन में ये डाला। उसके बाद उन्होंने मतलब यानी 880 रुपये चार्ज करने के बजाय 15,000 रुपये साल का वो चार्ज कर रहे थे। ये मैटर 15 साल 17 साल हो गया, ये अभी तक चल रहा है। Then it is a only one point decision and it is an open and shut case. मगर क्या होता है, सोसाइटी वाले क्या करते हैं, 25 लॉयर को बदल रहे हैं। करेक्ट। 25 लॉयर को बदलने के बाद भी मतलब यानी बीच में इतना लंबा गैप हो गया है कि उनका लॉयर कोर्ट में आते ही नहीं है। ओके। तो मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने तो पैसे भरे लॉयर के। करेक्ट। 15 साल पहले उन्होंने 65,000 रुपये भरे थे। ओके। अब जब सोसाइटी की बात आती है तो वो उन्होंने अगर 10 लॉयर को एंगेज किया फ्रॉम टाइम टू टाइम तो उसके चार्जेस तो वो पे कर रहे हैं। करेक्ट। तो जब सवाल उठता है कि जब द जनरल बॉडी इज सुप्रीम, then they cannot pass an illegal resolution. They cannot pass any judgment contrary to the law. और वो चीज क्या कर रहे हैं, वो चीज सारे मेंबरों से वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो it is totally illegal. It can amount to extortion and it can amount to intimidation, or individual member is not supposed to pay. There are clear cut, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं शायद, समझे कि एंड पेपर्स में भी कई बार आ चुका है, नॉट वंस सेवरल टाइम्स आ चुका है कि इस किस्म का जो चार्जेस जो मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स पे लगाते, इट इज टोटली अगेंस्ट द लॉ एंड दे शुड नॉट बी डूइंग दिस। And who should pay for that after that? Management committee members? नहीं, देखिए जब तक कोर्ट आपको नहीं बोलती है तब तक they cannot charge anybody. So who will pay that ये, क्योंकि मैं जनरल बॉडी में तो पास कर लिया उन्होंने कि करना है, एक वकील ने बाद में दूसरे का लिया, तीसरे को पास हो रहा है जनरल बॉडी में, और वो बाद में सोसाइटी से पैसा लेके वो केस लड़ रही है। तो एंडिंग में देखिए सबसे पहला तो इट्स एन व्हाटएवर इट इज, इट्स एन इलीगल रेजोल्यूशन। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार को अप्रोच करना पड़ेगा कि भाई ये रेजोल्यूशन उनके अपना जो रजिस्टर्ड बायलॉ जो है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास, उसमें ये इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। यू हैव टू कॉन्टेस्ट दैट फर्स्ट। इट इज एन ओपन एंड शट थिंग कि they cannot charge members for any
irregularities or illegal charges that they are going to force upon people. Members are not हमारे यहाँ पे तो रजिस्ट्रार ने ऑर्डर देने के बाद भी मेंबरशिप दे दो, मेंबरशिप दे ही नहीं रहे हैं वो। तो बाद में लीगल केसेस करने के बाद भी ऊपर के होता है ना, ये मेंबरशिप नहीं, मतलब मेंबरशिप नहीं दे रहे हो, मेंबरशिप नहीं दे रहे। हेलो, आई कैन हियर यू। आपने अनम्यूट करिए आपके। हाँ, Mr. Afzal, our webinar timing is over. We cannot take any मेंबरशिप नहीं दे पा रहे हैं। और Mr. Malhotra, our time is over. Please join in the next webinar. And I would like to thank our speaker, Mr. Mohammad Afzal, for sharing his knowledge and experience on today's webinar. Thank you all friends for joining and supporting today's webinar. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and a peaceful life forward. Thank you everybody. Thanks. Thank you so much, sir.